Hello, good morning students. Today we are going to discuss about the valve timing diagram for two-stroke petrol engine. In last class, as I told you, we learned about the valve timing diagram for four-stroke diesel engine and four-stroke petrol engine. Today is the 19th lecture of power engineering in first unit, that is IC engine. Today I am going to teach about the valve timing diagram for two-stroke petrol engine. So content of the today lecture is valve timing diagram for two stroke petrol engine. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का valve timing diagram के बारे में. So before going to talk about the valve timing diagram for two stroke petrol engine, actually I want to say that name should if we will talking about the two stroke, then it should be not valve timing diagram, it should be port timing diagram. अगर हम टू स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर हम पोर्ट टाइमिंग डायग्राम बोले तो ये बेटर रहेगा. बट वी जनरली वी कॉल्ड एज ए valve टाइमिंग डायग्राम. सो एज आई हैव रिटन valve टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. लेकिन अगर आप देख सकते हैं कि हम टू स्ट्रोक की बात करने जा रहे हैं तो टू स्ट्रोक में वॉल्व होता है, सॉरी पोर्ट होता है, तो उसके हिसाब से पोर्ट टाइमिंग डायग्राम अगर हम बोले तो बेटर रहेगा. तो दोनों एक ही चीज है, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम बोलिए या पोर्ट टाइमिंग डायग्राम बोलिए, क्योंकि बहुत सारा बुक में जो है वॉल्व टाइमिंग डायग्राम ही लिखा हुआ रहता है. वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक इंजन, टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक डीजल इंजन. सो आई हैव रिटन हियर आल्सो वॉल्व टाइमिंग डायग्राम फॉर टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन. Second thing, before going to talk about the valve timing diagram or port timing diagram, you must understand the process what is going to happen during the two stroke petrol engine, because if you will understand the process of two stroke petrol engine, then only you can understand the valve timing diagram or port timing diagram. अगर आपको टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का वर्किंग प्रिंसिपल नहीं आता है, इफ यू डोंट नो द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द valve timing diagram for two stroke petrol engine. So before going to talk about the two stroke valve timing diagram for two stroke engine, I will talk about more about the working principle of two stroke petrol engine. Actually last class, as I have taught you that working principle of two stroke petrol engine, two stroke diesel engine, four stroke petrol engine, four stroke diesel engine. So you can refer in the channel so that you can understand easily, बिकॉज जब तक अगर आप पीछे का वीडियो को नहीं समझते हैं तो आगे का वीडियो को समझना बहुत दिक्कत है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड अंडरस्टैंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन. सो यहाँ पर आई हैव ड्रॉन द डायग्राम सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द easily. So you can see that there are four process is going to happen. First of all, suction is going to happen. So second one is compression, third one is expansion, and fourth one is exhaust process. So from beginning itself I was telling that there are four process in the engine. So चाहे वो SI इंजन हो या CI इंजन हो, चार प्रोसेस होगा. दैट इज सक्शन स्ट्रोक होगा, उसके बाद कंप्रेशन स्टेज होगा, उसके बाद एक्सपेंशन स्टेज होगा, उसके बाद एग्जॉस्ट स्टेज होगा. सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टू स्ट्रोक. सो यू मस्ट understand the difference between the two stroke and four stroke. Two stroke means we will use the port. In four stroke we are going to use the valve. Because in last class I have taught you the difference between the two stroke petrol engine or two stroke diesel engine. That means two stroke engine and four stroke engine. And after before that I have taught about the difference between the petrol engine and diesel engine. So first of all you must understand that we are going to talk about the two stroke. So there should be valve, sorry, port. टू स्ट्रोक अगर हम बात करने जा रहे हैं तो पोर्ट होगा, ठीक है. उसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पेट्रोल इंजन. सो हियर द स्पार्क प्लग वी आर गोइंग टू यूज. दिस थिंग्स आर कॉमन, यू मस्ट know, because it is the foundation when you are going to study about the engine. So you must know these things. These are the common things you have to know. So now we are going to talk about the working principle. अभी हम वर्किंग प्रिंसिपल की बात करने जा रहे हैं. तो पोर्ट इसमें लगा रहता है, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है ट्रांसफर पोर्ट है, उसके बाद एग्जॉस्ट पोर्ट है, उसके बाद इनलेट पोर्ट है. तो तीन पोर्ट है, ठीक है. इनलेट पोर्ट को हम लोग सक्शन पोर्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है. जो भी आप बोलिए, बात एक ही है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि पिस्टन जो है इसमें क्या करता है, टीडीसी से पीडीसी करता है, मतलब
So TDC is nothing but top dead center and BDC is nothing but bottom dead center. तो जब पिस्टन जो है TDC से BDC में आता है, you can see the diagram, when the piston will travel from TDC to BDC, then what is going to happen? तो ट्रांसफर पोर्ट आपका जो है बंद हो जाएगा, इनलेट पोर्ट भी बंद हो जाएगा, ठीक है। जब पिस्टन TDC से BDC में आता है तो ट्रांसफर पोर्ट बंद हो जाता है और इनलेट पोर्ट भी बंद हो जाता है, तो बचा हुआ रहता है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट। इफ यू विल सी द डायग्राम एंड आई हैव रिटन द सक्शन स्टेज, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन एंड एग्जॉस्ट, देन यू विल गेट द कंफ्यूजन। So you must see the diagram, don't see the process, what is going to happen, because we are going to talk about the two stroke, means everything is going to complete in two stroke itself. In four stroke what is going to happen means all the process are going to happen separate and separate, but here in two stroke itself all the process is going to happen. So you must see the diagram so that you can understand easily. So क्या होता है कि जब पिस्टन TDC से BDC में आता है, when the piston travel from TDC to BDC, ट्रांसफर पोर्ट और इनलेट पोर्ट दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं और एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ओपन हो रहता है। तो एग्जॉस्ट पोर्ट जब ओपन रहता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका बंट गैसेस जो होगा, अर्थात जो आपका जलने के बाद जो आपका एक्स्ट्रा जो जो बेकार का चीज़ रहेगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक है। बंट गैसेस का जो रहेगा वो बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जब पिस्टन जो है अगर मूव करता है तो अगर थोड़ा सा भी अगर ऊपर अगर मूव करेगा तो उसके बाद इनलेट पोर्ट ओपन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन होता है, जिसके चलते जो है ये फ्यूल जो है जो पहले से यहाँ पर था वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। और इनलेट पोर्ट ओपन होने के चलते यहाँ से जो है आपको यहाँ पर देख रहे होंगे सेकेंड डायग्राम में, ये जो है इधर से जो है इंटर आ जाता है, ठीक है, यानी चार्ज जो है इधर आ जाता है। और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर आपको क्राउन शेप दिख रहा होगा, तो स्कैवेंजिंग प्रोसेस हो जाता है। देन स्कैवेंजिंग प्रोसेस क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जो आपका जो जलने के बाद अर्थात जो फ्यूल और चार्ज जलने के बाद जो आपका बेकार का जो चीज़ होता है अर्थात बंट गैसेस होते हैं वे बाहर निकल जाते हैं स्कैवेंजिंग प्रोसेस की मदद से। तो यहाँ पर जो है क्राउन शेप बनाया जाता है ताकि जो हमारा चार्ज जो है ऊपर चला जाए और जो बाकी का जो वेस्ट मटेरियल है बाहर निकला जाए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि चार्ज जो है अंदर आ रहा है, उसके बाद जो ट्रांसफर पोर्ट का क्या काम है, जो चार्ज यहाँ पर था उसको जो है ट्रांसफर करना, ठीक है। ट्रांसफर पोर्ट का काम है ट्रांसफर करना, तो सिलेंडर में जो है ट्रांसफर हो जाता है, जिसके चलते से कंप्रेशन जो है हो जाता है, कंप्रेशन जो है प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंप्रेशन तो दोनों टाइम होता है, मतलब कि एक जो व्हेन द पिस्टन विल मूव फ्रॉम top dead center to bottom dead center, there will be also the compression, and when the piston will move from bottom dead center to top dead center, there will be also compression. तो थोड़ा जो है जब पिस्टन जो है TDC से नीचे आता है तो उस समय भी थोड़ा मोड़ा कंप्रेशन होता है, क्योंकि चार्ज तो पहले से था ही, तो चार्ज है यहाँ पर तो कंप्रेस होगा ही होगा। तो उसके बाद जो है एक्सपेंशन होता है और उसके बाद जो फिर से वही प्रोसेस एग्जॉस्ट हो जाएगा जो बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम देखने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू सी द वाल्व टाइमिंग डायग्राम और पोर्ट टाइमिंग डायग्राम। सो यू कैन सी द हियर आई हैव रिटन द TDC, सो TDC इज नथिंग बट टॉप डेड सेंटर एंड हियर BDC इज नथिंग बट बॉटम डेड सेंटर। सो पहला में क्या होता है, पिस्टन जो है टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर में आता है, तो यहाँ पर जो है एक्सपेंशन प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। तो एक्सपेंशन जब होगा यानी कि आपका जो है पिस्टन जो है नीचे जाएगा तो फैलेगा, ठीक है। उसके बाद जो है एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाता है, एग्जॉस्ट पोर्ट विल बी ओपन, और जो आपका जो हमने बताया था ना एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा क्योंकि जितना भी आपका बंट गैसेस है वो बाहर निकल जाएगा। तो एग्जॉस्ट पोर्ट जो है ओपन हो जाता है 30 to 50 डिग्री बिफोर द BDC, ये BDC पहुंचने से पहले, बिफोर इट रीचेस द BDC मीन्स 30 to 50 डिग्री एंगल से पहले ही जो है ये खुल जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है एक्सपेंशन होगा, उसके बाद क्या होता है कि आपका ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाता है, जिसके चलते जो यहाँ पर चार्ज था वो ऊपर चला जाएगा। आफ्टर दैट द ट्रांसफर पोर्ट विल बी ओपन, यू कैन सी हियर ट्रांसफर पोर्ट विल ओपन बिफोर द 30 to 40 डिग्री BDC, मतलब कि जब एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा उसके 10 से 15 डिग्री के बाद जो है आपका जो है ट्रांसफर पोर्ट भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो है BDC से जब
TDC की ओर जाएगा, BDC से, when the piston will travel from bottom dead center to top dead center, then it will cover the ट्रांसफर पोर्ट, मतलब ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देगा, तब ना कंप्रेशन होगा, ट्रांसफर पोर्ट को बंद कर देगा. सो व्हेन इट विल ट्रेवल फ्रॉम BDC टू TDC, so transfer port will be closed after some times. After some times means you can say that after 35 to 50 degree from BDC the exhaust port will also close, क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, तो ट्रांसफर पोर्ट को भी कवर करेगा एंड एग्जॉस्ट पोर्ट भी देख रहे हैं कि यहाँ पर कवर हो गया, ठीक है. तो यहाँ पर क्या होगा कि दोनों के दोनों बंद हो जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द ट्रांसफर पोर्ट विल कवर, दैट इज ट्रांसफर पोर्ट विल बी ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है. ब्लॉक हो जाएगा मतलब कि ये ट्रांसफर पोर्ट क्लोज हो जाएगा. उसके बाद जो है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्लोज हो जाएगा, और हम जब ऊपर की ओर जाएंगे तो कंप्रेशन प्रोसेस हो जाएगा. यू कैन सी here the compression process is going to happen. जब compression होगा, due to compression process the temperature and the pressure will increase, और जो मेरा जो मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल का जो मिक्सचर है वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है. सो इग्निशन विल स्टार्ट, and ignition will start before the TDC. Ignition will start before the TDC means it is will start before means 15 to 20 degree before the TDC. So you can see in diagram compression is going to start, and when it will complete means before going to complete the compression the ignition process will going to start. So ignition process जब start हो रहा है तो ये TDC से पहले ही हो जा रहा है, ठीक है. और ये कितना है, 15 से 20 डिग्री पहले ही आपका इग्निशन स्टार्ट हो जाएगा, जिसके चलते जो है आपका पावर मिलना शुरू हो जाएगा. तो ये जो है आपका प्रोसेस था वॉल टाइमिंग डायग्राम का 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का. सो अगेन आई एम गोइंग टू टेल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इजीली. फिर से हम इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप जो है इसको अच्छी रीति से समझ सकते हैं, ठीक है. क्योंकि ये जो है बहुत सेंसिटिव है, अगर आप नहीं समझ सकते हैं अच्छा से तो आपको बहुत दिक्कत होगा. तो आई एम गोइंग टू टीच अगेन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि पिस्टन जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल द पिस्टन व्हेन पिस्टन विल मूव फ्रॉम TDC टू BDC, सो एक्सपेंशन प्रोसेस विल स्टार्ट एंड द एग्जॉस्ट पोर्ट विल बी ओपन, क्योंकि एग्जॉस्ट पोर्ट तो पहले है ना, उसके बाद इनलेट पोर्ट है, ट्रांसफर पोर्ट तो यहाँ है. तो सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट क्या होगा, ओपन होगा. उसके बाद जो है थोड़ा जब नीचे आएगा, BDC अभी नहीं पहुंचा है, ठीक है. जब BDC पहुंचने से पहले ही क्या होगा कि ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा, यानी कि एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हुआ फिर ट्रांसफर पोर्ट ओपन हो जाएगा. उसके बाद जब BDC जब क्रॉस करेगा और जब ऊपर की ओर जाएगा, दैट इज व्हेन इट विल ट्रेवल फ्रॉम BDC टू TDC, तो ट्रांसफर पोर्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. यू कैन सी है ट्रांसफर पोर्ट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है. उसके बाद जो है एग्जॉस्ट पोर्ट जो ओपन हुआ था वो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और कंप्रेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा. कंप्रेशन स्टार्ट होगा. बिफोर गोइंग टू कंप्लीट द कंप्रेशन द प्रोसेस ऑफ इग्निशन विल स्टार्ट एंड देयर विल बी द बर्निंग ऑफ फ्यूल मींस चार्ज पार्टिकल. तो चार्ज जब जलेगा तो उसके बाद क्या होगा, आपका पावर का जनरेशन होना शुरू हो जाएगा, एंड हेंस दिस साइकिल विल जनरेट द पावर. तो यही था वॉल टाइमिंग डायग्राम फॉर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या पोर्ट टाइमिंग डायग्राम फॉर 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन का. तो जो कुछ भी हमने लास्ट स्लाइड में बोला है यहाँ पर हमने जो है लिख दिया है ताकि आपको नोट्स लेने में दिक्कत ना हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग नोट्स चाहते हैं. तो हम आई हैव गिवन द नोट्स हियर सो दैट यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक एंड यू कैन अंडरस्टैंड एंड यू कैन राइट इन एग्जाम इन ए and you can score the good mark. So whatever I have taught in last slide, just I have written here, so you can go through this slide, so it will help you to understand in detail. If you want to refer the reference book, then you can refer the reference book. I have suggested some book name so that you can understand and you can go through this book and you can get the more knowledge about the wall timing diagram or any IC engine. तो आप जो है इस बुक को रेफर कर सकते हैं. तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स. आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही. अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए हम विदा लेते हैं. धन्यवाद.